دا بھی ٹھیک ہو الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں جان میرا خوش رہا بات راستے مسرات ہے پھولوں کی طرح جو میرا چینل پہ نیا کرتے ہیں سبسکرائب لائک سب سے کمنٹ آج جو ابو کی طبیعت بہت خراب ہے اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں ابو کو ڈرپ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سب نبی کی دعا سے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں دے جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے اور جو اس ٹائم پریشان حال ہے تکلیف میں ہے اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی بھی دور فرمائے اور ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے آمین ویسے تو کافی دن ہو گئے آپ کے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بس عجیب سی طبیعت بنی ہوئی ہے ٹائم سے کھانا پینا بھی نہیں ہے ویسے تو میں کھانا ٹائم پہ بناتی ہوں لیکن آپ کا بھائی کو جو ہے نا بالکل بھوک بھی نہیں لگتی جیسے صبح میں کھانا لے کر آتی ہوں تو کہتا ہے مجھے بھوک نہیں ہے بالکل بھی پھر میں نے کہا کہ اللہ کے بندے آپ کو ویکنیس ہو جائے کہ تھوڑی بہت جو ہے نا آپ کھانا وغیرہ کھا لیں بس تھوڑا بہت جو ہے نا تھوڑے بہت لقمے صبح کے ٹائم تھوڑے بہت لقمے شام کو سارا دن جو ہے نا ایسے گزر جاتا تھا نہ ہی کی پانی وغیرہ نہ ہی کچھ چیز بس ایسے جو ہے نا جب واپس آتا تھا شام کو گھر تو اس کی حالت جو ہے نا بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی کل گیا تھا اپنے کام پہ جب واپس آئے تو اس کی شکل جو ہے نا بالکل جو ہے نا عجیب سی بنی ہوئی تھی ہونٹ بھی بہت زیادہ خشک تھے تو میں نے پوچھا آپ نے کچھ کھایا کہنے لگا کہ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کھایا میرا کھانے کو دل بھی نہیں کرتا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے نہ ہی اسے نیند ہے نہ ہی اس کو کوئی کھانا پینا ہے آج صبح جو ہے نا صبح کے ٹائم میں نے ناشتہ بنایا میں ناشتہ لے کر آئی تو کہنے لگا مجھے بھوک نہیں ہے پھر میں نے کہا چلیں اچھا آپ کو بھوک نہیں ہے تھوڑا بہت کام تھا وہ کام کیا تھا ہم وہ گئے تھے جو کہا تھا آپ کو پیر کے پاس جانا ہے تو وہاں گئے یہ نہیں گئے اس نے کہا کہ میں نہیں جاتا آپ خود جاؤ تو پھر ساسو ماں تھی میں تھی اور بھائی جان تھا اور میری بیٹی تھی پھر ہم ادھر گئے وہاں پہ جو ہے نا اس نے جو باتیں بتائی ہیں نا سیریسلی بہت زیادہ جو ہے نا دل کو تکلیف ہوئی پھر اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا اپنے گھر میں اتنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اتنا پڑھائی کریں آپ سے جتنا بھی ہو سکے نا آپ پڑھائی کریں کیونکہ آپ کے گھر میں جو ہے نا بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے آپ کے گھر میں کسی نے جادو کیا ہے وہ پہلے جو جادو کیا تھا شکر ہے کہ آپ کا خامد جو ہے نا وہ پڑھا ہوا ہے وہ پڑھتا رہتا ہے اسی لیے جو ہے نا وہ تویز کا جو ہے نا اثر ختم ہو جاتا ہے پھر نیو تویز ہو جاتی ہیں تو آپ کے گھر میں کوئی جادو کا مسئلہ ہے اور اسی وجہ سے جو ہے نا آپ سایہ بن گیا ہے آپ کے اوپر بھی سایہ ہے اور آپ کے خامد کے اوپر بھی سایہ بنا ہوا ہے اور آپ کے پورے گھر پہ بچوں کے اوپر بھی سایہ بنا ہوا ہے پھر اس نے کہا کہ وہ سورت جو ہے نا لکھ کر دی ہے اس نے کہا کہ آپ جو ہے نا ہر بار یہ سورت بھی پڑھیں اور تصویر بتائیے یہ بھی پڑھیں اور یاسین سورت جو ہے نا آپ نے پڑھ کر پانی ساتھ رکھنا ہے پانی کو جو ہے نا دم بھی کرنا ہے اور پھر جو ہے نا پانی جب دم ہو جائے گا تو پھر جو ہے نا آپ نے پینا بھی ہے اور اپنے پورے گھر میں جو ہے نا چھڑکاؤ وغیرہ تھوڑا بہت لگانا ہے کیونکہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ خیر کریں سب بہن بھائی نے دعا کرنی ہے تو ایک بات اور بھی اس نے کہی اس نے کہا کہ ایک تو جادو کا مسئلہ ہے اسی کی وجہ سے یہ سایہ ہو گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے جیسے حسد ہوتا ہے حسد کا مقصد یہ ہے جیسے کہ ہم مطلب اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو جو لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہو تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اتنا مہنگا سوٹ اتنا اچھے والا سوٹ اس نے پہنا ہے یہ وہ ایسے جو ہے نا باتیں ہوتی ہیں تو اس نے یہ بات بھی کہ ایک حسد ہوتا ہے اور ایک جو ہے نا نظر ہوتی ہے تویز جو ہے نا تویز کم ہے جو حسد اور نظر ہوتی ہے نا یہ بہت بڑی ہوتی ہے آپ اس طرح کریں اپنے بچوں کو بھی کہیں آپ بھی آپ سب جو ہے نا بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں انشاءاللہ آپ کے گھر کے مسائل جو ہیں کچھ ٹھیک ہو جائیں گے جب میں واپس آئی تو جیسے میں واپس وہاں پہ کچھ باتیں ہوں گی جو اس نے بتائی تو ٹینشن تو تھی مجھے سارا راستہ جو ہے نا میرا جو ہے نا دماغ عجیب سا جب میں گھر واپس آئی تھوڑی بہت باتیں میں نے آپ کے بھائی کو بتائی تھوڑی بہت جو باتیں اس نے کہی میں نے ابھی تک آپ سب بہن بھائیوں کو بھی نہیں بتائی اور اسے بھی نہیں بتائی پھر میں نے اسے کہا کہ آپ جو ہے نا ناشتہ کر لیں ناشتہ ابھی تک آپ نے نہیں کیا اس ٹائم جو ہے نا ٹائم ہو چکا 1 بج چکا تھا پھر میں نے جلدی جلدی تازہ وہ آٹے کی گندئی تھی وہ چاولوں والی روٹی میں نے بنائی بھائی حنیف بیدار تھا پھر اس نے ناشتہ کیا ناشتہ کر کے وہ ایک میری جو ہے نا کزن کی شادی تھی اور ساسو ماں اور حبیب اللہ انہوں نے کہا کہ ہم نے شادی پہ جانا چلے میں نے کہا بیٹا آپ جائیں ان کو کہہ دینا
कि अबू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से जो है ना अम्मी और अबू नहीं आ सके। फिर हम वहाँ पे नहीं गए, तो वो दादी अम्मी और उसका पोता हबीबुल्ला वो दोनों शादी पे, आपका भाई भी गया था उनको छोड़ने के लिए। जब वो सासू माँ को और हबीबुल्ला को वहाँ पे छोड़ा, जब वापस आया तो थोड़ा बहुत काम था जिसे हम नहीं कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। वहाँ पे गया तो उसने कहा कि थोड़ी बहुत जगह ये जमात बनवाने गया था अबू, बालों की सेटिंग करवानी है। वहाँ भैया नहीं बता रहा था, वहाँ उसने कहा कि बैठा मसाज, मतलब कि खालाजात जो है मसाज कहते हैं, जैसे बैठा तो मैंने कहा कि चलें ये सेटिंग हो रही है, मैं इधर बैठ जाऊँ। 2 मिनट बाद मैंने देखा तो मसाज जो है ना लेटा हुआ था और इसकी हालत पे बिगड़ी हुई थी, और जो है ना वो तलियाँ मार रहा था पाँव पे, बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी तबीयत आउट हो गई। फिर मैंने थोड़ी देर वहाँ पे तलियाँ लगाई, बाद में उसको मैं ले आया घर। जैसे घर आया मैं उधर चारपाई पे बैठी थी, जैसे भी इसने गेट का दरवाज़ा खोला तो मेरी नज़र पड़ी, मैंने देखा इसकी शक्ल जो है ना बिल्कुल जो है ना ऐसे लग रहा था जैसे इसके चेहरे पे बिल्कुल खून भी नहीं है, बिल्कुल जो है ना शक्ल इसकी अजीब थी, होंठ इसके खुश्क थे। और मैं जल्दी मैंने शूज़ भी नहीं पहना, ये जो है ना सीधा इधर आया। मैंने कहा कि खैरियत है, क्या मसला है? कहने लगा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मेरा ब्लड का मसला हो गया। ये जल्दी आकर इधर सो गया। तो फिर जो है ना मैंने पूछा भाई से, भाई ने कहा कि थोड़ा बहुत मैंने इसे नमक खिलाए, नमक इसने खा लिया है, और मैं डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ, वो आएगा तो फिर जो है ना दवाई होगी। वो शायद भी हमारा जो है ना फैमिली डॉक्टर है, तो शायद भी उस टाइम दारे दिन बना गया हुआ था, कॉल की। खैर वो 5-7 मिनट बाद जो है ना वो आ गया इधर, तो उसने चेक भी किया और दवाई भी दी। ये ड्रिप जो है ना छोटी ये लगी हुई है, तो उसने कहा कि आपने जो है ना ग़िज़ा का ख्याल रखना है, और ये दवाई भी देकर गया है, ये रात को आपने खानी है और इंशाल्लाह कल मैं आऊँगा। ये दवाई दी है, ये तो मुझे ऐसे लग रही है जैसे कि ये दिमाग की दवाई हो। ये सारी दवाई ये जो है ना ताकत की है, और ये जो है ना दिमाग की मुझे लग रही है। तो आप सब मियाँ से गुजारिश है, दुआ करना आपके भाई की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। जब इसकी तबीयत का मसला होता है तो सीरियसली समझ भी नहीं आती कि बंदा क्या करे, ना ही काम की समझ लगती है, और ना ही अजीब सी जो है ना तबीयत हो जाती है, ना ही कोई बात करने को दिल करता है, ना ही कुछ। अब देखें टाइम जो है ना शाम हो चुकी है, अभी तक सारा काम वैसे का वैसे पड़ा है, बिल्कुल एक काम भी नहीं किया, और ना ही मुझसे काम होता है बिल्कुल भी, ना ही मेरा दिमाग काम कर रहा है। और सुबह भी हमारे व्लॉग नहीं बना। अभी जो है ना मैंने खुबैब को कहा बेटा आप जो है ना इस तरह करें, थोड़ी बहुत वीडियो बना लें। बहन भी परेशान होंगे कि क्या मसला है, इनकी वीडियो नहीं है। तो अभी जो है ना ये खुबैब वीडियो बना रहे हैं, कैमरा मैन खुबैब बना हुआ है। तो अल्लाह ताला खैर करे। सब मियाँ से फिर भी गुजारिश है, दुआ करना आपके भाई के लिए, उसकी आपके भाई की तबीयत ठीक हो जाए। जब इसकी तबीयत ठीक नहीं होती तो सीरियसली ऑटोमेटिक मेरी भी तबीयत आउट हो जाती है। अब ये ड्रिप ख़त्म हो गई, ड्रिप उतारते हैं, अल्लाह ताला खैर करे। जब ये वापस आया इसके हाथ जो है ना बिल्कुल बर्फ़ की तरह थे, ठंडे। इसके हाथ जो है ना बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे इसके हाथ के ऊपर ब्लड भी नहीं है, इतनी जो है ना इसकी हालत बिगड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ी हुई थी। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला करम करे, बस दुआ ही कर सकते हैं। अब ना इसे अंदर ले चलें खुबैब जी, अंदर ले चलते हैं, आग में जलाते हैं जी। इधर सर्दी हो रही है, अब अंदर ले चलें। सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा, तंदूर जला के ना अंदर रखते हैं, फिर जो है ना आपके भाई को अंदर भी ले, आपके भाई को सॉरी आपके खुबैब को कह रही थी, आपके बाबा को फिर अंदर ले चलते हैं जी। तो जब कोई तकलीफ़ हो, मेरा दिमाग भी काम नहीं करता, और मेरी ज़बान भी अजीब सी हो जाती है, मेरी हालत भी अजीब सी हो जाती है। बस मुझे समझ भी नहीं आती कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, किधर जाऊं किधर ना जाऊं, अजीब सी तबीयत बन जाती है। चले अभी फ़िलहाल दवाई जो है रखती हूँ और जगह बनाती हूँ। पहले तंदूर जलाती हूँ, तंदूर जला के ना अंदर रखते हैं, क्योंकि अंदर सर्दी है बहुत ज़्यादा। जब तंदूर अंदर रखते हैं ना जलाकर, फिर सर्दी जो है ना सर्दी का पता भी नहीं चलता सर्दी है कि नहीं है। हाँ जी।
चले बेटा पहले जो ना तंदूर जलाते जी तंदूर जला लो, फिर तंदूर को अंदर रखते हैं, हैं। हाँ वो को फिर अंदर सुमाते हैं, ठीक है। हाँ जी। लकड़ियों को बैब ले रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी जो है ना तंदूर गर्म करें और अंदर ले चलें। लकड़ियाँ जो है ना हमने डाल दी हैं और इंशा बेटा आप इस तरह करो, ये शापर डालो, हाँ ये सारे शापर तंदूर के अंदर डाल दे। और इधर सब्जी हमारी आ गई है और मेरी बेटी जो है ना कटाई कर रही है, हम तंदूर जला रहे हैं। सब्जी जो है ना मैंने सोचा कटाई करवा लूँ, क्योंकि वो गाजरियाँ कटाई कर रही थी तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी जो है ना आलू की छिलाई कर दूँ ताकि जल्दी जल्दी ये काम हो जाए। तंदूर हमारा जल रहा है और आपके भाई को मैंने अंदर से ला दिया है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि इसको जो है ना अभी ये दवाई वगैरह मैंने दी है, जिसको सुकून की ज़रूरत है इसके साथ बात नहीं करनी। जब इसकी नींद की कमी पूरी होगी अब इसकी तबीयत फिट हो जाएगी। इसीलिए फिर मैं वहाँ से उठा ही, आपका भाई सोया हुआ है, मैंने उससे कोई बातचीत नहीं की। तो सब्ज़ी बना रहे हैं, रोटी बना के ना कुछ नींद भी पूरी हो जाएगी, फिर मैं उसे जगाऊंगी, खाना खिलाऊंगी। अभी भी ना तंदूर हमारा जल रहा है। बेटा आप तंदूर का ख्याल रखें और जाके सलाम दुआ भी कर लें, मैं सब्ज़ी कटाई कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं पिछले कुछ जाना खुजराबाद है अफ्तर खातर फूलों की तरह मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ। पहले वह ने भी कुछ वीडियो बना रही थी। मेरे अब्बू का तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप आंटी अंकल दुआ करनी है कि मेरे अब्बू जल्द से ठीक हो जाए। अभी मेरे अब्बू सो रहे हैं, इसलिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। और अम्मी जो है ना अंदर सब्ज़ी का काट रही है, बना रही है, फिर हम सब्ज़ी बनाएंगे। तंदूर भी जल रहा है, आपको जाकर दिखाता हूँ। इधर जहाँ तंदूर जल रहा है और इधर इंशा भी चल रही है, उधर अम्मी जो है सब्ज़ी काट रही है। इधर देखिए आंटी अंकल हर तरफ हर सब्ज़ा है और इधर बच्चे जा रहे हैं इंशा और तैयब। यह जो है ना मैंने तंदूर ले लिया। अब जो है ना बच्चों को इकट्ठा करता हूँ ये इस बड़े घर से, फिर ये तंदूर सब बच्चों को बांटता हूँ। सब बच्चों को मैंने इकट्ठा कर लिया है और सब बच्चों से दुआ करवाते हैं और फिर जो है ना मिठाई बांटते हैं। बच्चों दुआ करनी है, आपका चाचू तकलीफ़ में है, अल्लाह ताला उसे सेहत दे और अल्लाह ताला उसे जल्दी ठीक कर दे। बेटा सब ने दुआ करनी है। हाँ क्या कह रही थी बेटा? आमीन 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 सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। बच्चे शादी पे गए थे, ये गुड़िया शादी पे गए। आमीन आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। हाँ इधर वो भतीजी हमारी सॉरी माविया की वाइफ आई हुई है और उसको हमने दे दिया है। ये देखें ये भी खा रही है। चलें पहले मैंने दुआ की है मम्मी। हाँ आपने दुआ ढेर सारी करनी है, ठीक है। मम्मी जान के लिए मैंने पहले दुआ मैंने की। माशाल्लाह बच्चों सब ने दुआ करनी है, ठीक है। ठीक है। जो बच्चे दुआ मांगते हैं ना अल्लाह ताला कबूल करता है। हाँ और ये जो बच गई है ना मिठाई, जो घर में बचे हुए हैं जो ऑफ कैमरा है, फिर उनको भी दे देंगे और दुआ भी करवाएंगे। अल्लाह ताला मेरे खामद को जल्दी ठीक कर दे। सीरियसली बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है। कुछ बातें ऐसे भी होती हैं जो हम सोशल मीडिया पे नहीं ला सकते। बहुत ज़्यादा जो ना इस टाइम परेशानी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला सब की परेशानी दूर फरमाए और अल्लाह ताला हमारी परेशानी भी दूर फरमाए और अल्लाह ताला मेरे खामद को जल्दी ठीक कर दे। बस यही परेशानी बनी हुई है। तंदूर भी हमारा रेडी हो चुका है और इधर पेड़े भी बन गए हैं। समझ भी नहीं आती कि कैसे काम करें। शुक्र है कि सासू माँ आ गई, फिर उसने जो है ना कुछ हाथ बटाया और काम जो है ना हमारा कुछ फाइनल हो गया। अभी रात होने वाली है लेकिन समझ भी नहीं लगती कि बना क्या करे। चलें बेटा दुआ करना। हाँ मैंने बताया है, सासू माँ घर पे नहीं थी। मैंने मैंने बताया है सासू माँ घर नहीं थी, इसको पता भी नहीं था।
आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला खैर करेगा। आलू और गाजर का सालन बन रहा है और चलती हूँ आपके भाई का पता करती हूँ। रोटी मैंने लगा ली थी, तंदूर भी अंदर रख दिया था। अब इसे जगाती हूँ, पूछती हूँ तबीयत कैसी है। डॉक्टर साहब, तबीयत कैसी है अब? सर में दर्द है? चले सालन तैयार हो जाए, खाना खा लें, फिर मैं आपको दवाई खिलाती हूँ। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तंदूर जो ना मैं अंदर ली हुई हूँ, इसके अंदर अंगारे भी हैं, कमरा जो ना गर्म हो जाएगा। अल्लाह ताला रहम करे। सालन हमारा रेडी हो चुका है और कटोरी में डालती हूँ, आपके भाई को खाना खिलाते हैं और फिर आपके भाई ने खानी है दवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटोरी में सालन कैसे डाला, चलिए इधर रख देती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये आपके भाई की फेवरेट सालन है, माशाल्लाह। लग रहा है कि आज 2 रोटियां खा जाए। 2 खाए, 3 खाए, खाए सही। कटोरी में मैंने सालन डाल दिया। अब इसके ऊपर ढक्कन देती हूँ। अब उठाती हूँ रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, उठो, खाना खा गए ना? चले मैं इसे खाना खिला लूँ, फिर मिलते हैं।